All, I hope you all are fine and doing well. Today we are going to talk about the Constitution of UK, United Kingdom, Great Britain, whatever name you call it. So this is a highly important class. Why is it important? It is one of the important constitutions in the world. This is, the British Constitution or the British democracy is known as Mother Democracy. The British parliamentary system is the mother of many parliamentary systems in the world. Take the example of Pakistan and India. Both have parliamentary forms of government and they have acquired it from the British Constitution. So you see New Zealand or Canada and some other countries, and there you find the existence of parliamentary government like that of the Great Britain. So this is the importance. When it comes to the importance with respect to paper, like political science paper, every year, mostly every year or every other year, you have a question in the paper on British Constitution, on British Prime Minister, on British Cabinet, on British Parliament, with a comparison to another country or another country's Parliament or Cabinet or Prime Minister or President, so on and so forth. So there are two parts in your paper, part A and then part B. So part A carries two important constitutions of the world, and that they are the Constitution of the USA and the Constitution of the UK. So when you understand these two constitutions, so it means that one complete part of your paper you have covered. And moreover, once you understand the Constitution of UK, it means that you understand the constitution of our parliamentary forms of governments, including India and Pakistan in particular. Once you understand the presidential form of Constitution of America, of the USA, you understand all types of presidential systems in the world in one way or the other. So these two are highly important constitutions when it comes to the preparation of CSS or PMS of political science paper. So that is why I decided to start it from the Constitution of the UK. Moreover, let me give you, since this is our first class of paper 2 of this month, so let me give you some guidelines and roadmap as well. Invite your friends, those who are missing or those who are absent so far, invite them so that they can join us. Share this lecture in our WhatsApp group SAFE6, and those who have not received the notification will with your help receive it. So kindly invite your friends, mention them, tag them, whatever source that you can use. So this is your duty, each one's. It is not the duty of only teacher, and it is not the duty of only CR of your class. It is the duty of everyone, right? So help your friends and
what you like for yourself, also like it for others, and this is something we call humanity. So now come to our topic, and that is the Constitution of UK. Okay, before starting the class, let me give you some instruction about the constitutional law as well. Constitutional law and paper 2 of political science, both are same in syllabus, both have the same syllabus. Here you study the constitution of UK, USA, Germany, Russia, China, and Pakistan, India, the history of the constitution of Pakistan, the foreign policy, globalization, and the same topics you study or you prepare in constitutional law. So if you go through the syllabus of the constitutional law and the syllabus of the political science paper 2, you will find that they are overlapping. They are overlapping, and overlapping 100% completely. What does it mean? It means that if you understand completely political science paper 2 in depth, it shows that, or manifests that you will definitely understand, ascertain, get the concept clarity of constitutional law as well. So political science paper 2 preparation means the preparation of constitutional law as well. They have the same book for preparation, and they have the same material and the same explanation, with a few topics, 2 or 3 maybe, that might be different in constitutional law, and I will give you extra classes for that. Otherwise, so far I have mentioned in the description as well that today's class is the first class of political science paper 2 as well as constitutional law, because both are completely same. In constitutional law, you study the constitutions of the world, or important constitution of the world. In political science, you also study the constitution of the world. So both are completely same. So if constitutional law is the optional subject of yours, so then you are lucky, because in the preparation of political science, you are also preparing for constitutional law as well. So then you don't need to study constitutional law again. Yes, if you study again and again for 2 months more on your own, so then that might be a plus point for you. That might be some more command on the political science plus constitutional law, and they are completely overlapping. So even when you are revising your course for political science, it means that you are preparing for constitutional law, and once you are preparing for constitutional law, it means that you are preparing for political science as well, and so on and so forth. Both are overlapping, completely overlapping. So keep this in mind, that political science paper 2 and constitutional law both are overlapping 100%. And if you don't want to believe, or if you want to check it by yourself, after the class, go and download the syllabus of constitutional law and the syllabus of paper 2, and then compare and contrast both. So write the topics that are same and write the topics that are different. So this is the short guidelines, a roadmap for you, that you are going to study constitutional law and political science paper 2 simultaneously in this month. So you are preparing 2 subjects with me in 1 hour, and luckily both have the same topics and same syllabus and same book from which you are going to prepare the paper. Okay, let me show you the book as well. Although I have suggested you, this is our book. I don't know whether it is showing correctly or not. World Constitution by S.L. Kelly, right?
So if you don't have it, buy this book, and if you have this book, then study it on daily basis. And I think it might be available on internet in PDF. So during lockdown, if you can't buy it, you can't, or you may download it. So now come to our topic. So our topic is that Constitution of the Great Britain, right? So कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा मुराद बस सर्टन प्रिंसिपल्स होते हैं, सर्टन प्रिंसिपल्स on which the government is organized, government is run, are certain principles which guarantee the fundamental rights of the people, जो के लोगों के fundamental rights होते हैं, या the certain principles for the government and the people. ठीक है, ये दोनों किस तरह एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, रहेंगे, बस यही, इसी से मुराद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है. एनी हाउ कॉन्स्टिट्यूशन पर मैं अलग एक आप लोगों को लेक्चर भी दूंगा. आज का जो हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूके. यूके को हम कहते हैं मदर डेमोक्रेसी. मदर डेमोक्रेसी क्यों इसको कहा जाता है? मदर डेमोक्रेसी इसको इसलिए कहा जाता है दैट इट इज द फर्स्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, कि इस दुनिया में अगर आप लोगों को पहली डेमोक्रेसी नजर आती है तो वो यही लोग हैं. अगर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को नजर आता है तो वो भी यूके का है. ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजरा है. एक बात. दूसरी बात यह है कि इसमें एडाप्टेबिलिटी है और एडजस्टेबिलिटी है. ये दो अल्फाज लिखे जल्दी से, एडाप्टेबिलिटी एंड एडजस्टेबिलिटी. इसने वक्त के साथ साथ नई चीजें एडाप्ट भी की और वक्त के साथ साथ उसके साथ खुद को एडजस्ट भी किया. So the constitution of the UK has the flexibility and adaptability and adjustability. One thing, and it is called mother democracy. मदर डेमोक्रेसी है कि डेमोक्रेसी की जो वजूद है वो इन लोगों से हुई. फिर दुनिया में जितने भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, दे गॉट बर्थ फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. इसी कॉन्स्टिट्यूशन से इन लोगों ने अपनी जो है बर्थ कह ले या अपना वजूद कह ले या अपना सिस्टम कह ले वो लिया. एग्जाम्पल दूंगा पाकिस्तान की. पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और ये बरतानिया के सिस्टम के पार्लियामेंट्री निज़ाम के बिल्कुल सेम है. इसी तरह इंडिया को ले ले, बिल्कुल सेम है. चंद चीज़ें अलग हो सकती हैं, अदरवाइज इट इज सेम. अच्छा, ये तो इसकी जो है खसूसियत हो गई. ठीक. फिर इसकी एक और क्वालिटी है और वो ये है कि जब तक आप ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और इसके पार्लियामेंट्री निज़ाम को नहीं समझेंगे, यू मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनी गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड. के पूरी दुनिया में जितनी भी हुकूमतें हैं आपको समझ ही नहीं आएगा कि पार्लियामेंट क्या है, इसमें 2 चैम्बर्स क्या है, यूनिटरी सिस्टम क्या है, सदर क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, इख्तियारात क्या है, टिटुलर हेड क्या है, रियल एग्जीक्यूटिव क्या है, सॉवरेनिटी क्या है, आप लोगों को कोई समझ नहीं आएगा. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिलीजन का रोल क्या है, इसमें लोगों का रोल क्या है, कल्चर्स क्या है. यू विल नॉट अंडरस्टैंड अनटिल एंड अनलेस यू स्टडी दीज salient features of the ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसकी एक अहमियत इस बात में जो है पन्हा है कि once you understand British Constitution, it means that you understand the basic concepts of each and every constitution of the rest of the states in the world. So now, अब सवाल यह है कि इसका ओरिजिन क्या है और इसकी जो पार्लियामेंट है और इसका जो रिटन या इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आया कहाँ से है, किस तरह आया है. पाकिस्तान का तो आप लोगों को पता है कि 1947 में आज़ाद हुआ और फिर जो है इन लोगों ने कमेटी बनाई, इसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं. फिर 1956 में हमें पहला आईन मिला, फिर 1962 में, 1973 में. तो इन लोगों को कहाँ से ये मिला, कैसे मिला,
अब इसको पढ़ते हैं। आप लोगों को बताता हूँ, ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है इसको इग्नोर करते हैं, इवन टीचर्स भी नहीं पढ़ाते, लेकिन मैं आपको हिस्ट्री में ले जाता हूँ। एंड वंस यू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री, द ओरिजिन, then you will understand the salient features and you will build your concept clarity on these points. तो आज का जो पहला लेक्चर है, this is highly suggested, recommended and highly important and significant. तो फर्स्ट स्टेज ले लेते हैं। पहली जो शुरुआत होती है वो होती है एंग्लो सैक्सन पीरियड से। एंग्लो सैक्सन, एंग्लो ये लिख ले अपने साथ, ANGLO एंग्लो, फिर हाइपन डाल ले, हाइपन के बाद लिखें सैक्सन, SAXON सैक्सन। ये ट्राइब्स थे, मुख्तलिफ जगहों से आते थे और इंग्लैंड पर हमले करते थे और यहाँ पर बस जाते थे, कब्जा ग्रुप था बस, बिल्कुल एंग्लो सैक्सन। ठीक है, यहाँ से शुरुआत इसकी होती है, फर्स्ट स्टेज इसको कहा जाता है। इन लोगों ने क्या किया, द एंग्लो सैक्सन इस्टेब्लिश्ड द किंगशिप। इन लोगों ने किंगशिप जो है वहां पर पहली दफा इस्टेब्लिश की, बनाई। एक किंग होता था और वो सावरन होता, वो सारे के सारे फैसले करता, whatever he would say would become the law, और जो भी वो कहता फिर वो जो है क्या कहते हैं, अच्छा, हुमा इन यूके बोथ सिस्टम्स आर गोइंग डेमोक्रेसी एंड क्वीन, ये फिर आखिर में मुझसे पूछे ये क्वेश्चन। ठीक है हुमा, क्वेश्चन वैलिड है, क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन आस्क मी दिस क्वेश्चन एट द एंड। पहली किंगशिप आया एंग्लो सैक्सन पीरियड में। एंग्लो सैक्सन पीरियड में होता क्या है, एंग्लो सैक्सन पीरियड में किंगशिप आता है, वो किंग जो फैसले करता है वो लागू हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ में वो चंद लोगों को या बॉडी ऑफ द पीपल उसको रख लेता है जो हेल्प करते हैं किंग की। अगरचे फैसले जो है किंग के ही चलते हैं, लेकिन वो बॉडी ऑफ काउंसिल जो है वो बना लेता है अपने लिए। तो एक छोटा सा ग्रुप भी बन गया। फिर वक्त के साथ साथ जो बॉडी ऑफ काउंसिल उसने बनाई, ठीक है, या छोटे से, या उसको कहा जाता है काउंसिल ऑफ वाइज मैन, काउंसिल ऑफ वाइज मैन के अक्लमंद लोगों का एक ग्रुप, वो बादशाह को या इस किंग को हेल्प करते थे फैसले में। क्या क्या फैसले होते हैं, मतलब टैक्स लगाना है, कानून बनाना है, किसी को सजा देनी है, या फॉरेन ट्रीटीज करना है, एग्रीमेंट्स करनी है लोगों के साथ, वो ये हेल्प करते थे। इसी तरह वक्त के साथ साथ जो काउंसिल ऑफ वाइज मैन थी उसकी इख्तियारात या जो है अहमियत बढ़ने लगी, और किंग की जो थी, किंग की उस पर लिमिट्स आने लगे। मतलब वो कुछ नहीं कर सकता था विदाउट द हेल्प ऑफ दीज काउंसिल ऑफ वाइज मैन, which limited the sovereignty of the king, and in this way constitutional monarchy was established। और इसी तरह जो है फिर constitutional monarchy है, अब भी king है लेकिन constitutional है, थोड़ा सा कानून पर चलता है। ऐसा नहीं है कि बस वो आर्बिट्ररी है, आर्बिट्ररी मोनार्की या एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं है कि बस किंग जो चाहे बस कर ले, नहीं, वो उसको मशवरा चाहिए होता था। फिर दूसरा स्टेज आता है, और दूसरे स्टेज में, सेकंड स्टेज में नॉर्मन कंक्वेस्ट के बाद जो है ये शुरू होता है। द नॉर्मन्स, जो नॉर्मन लोग थे उसमें विलियम द कंक्वेरर जो था, उसने जो काउंसिल ऑफ वाइज मैन तो उसको खत्म किया, डिसअपेयर किया, नया काउंसिल बनाया, ठीक है, नया काउंसिल, और उसको नाम दिया क्यूरिया रिजिस का, और वो फिर जो है उससे हेल्प लेता था लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ों में। और उसने फिर इसके लिए एक ख़ास वक़्त भी रखा, दैट द मीटिंग वुड बी हेल्ड थ्राइस अ ईयर, के साल में 3 दफ़ा मिलेंगे, ठीक है। तो एक टाइम भी आ गया, ठीक। साथ में फिर जब इसको पता चला कि मेरे कुछ अंदरूनी मामलात ऐसे हैं जो मुझे हर वक्त जो है ज़रूरत पड़ती है मशवरे की, काउंसलिंग की, बातों की, मुल्क चलाने की, तो इसके लिए क्यों ना एक नया ग्रुप बनाया जाए। फिर उसको नाम दिया
इसी में से चंद लोगों को, जो क्यूरिया रिजिस्ता काउंसिल या परमानेंट काउंसिल भी उसको कहा जाता है, उससे जो है चंद लोग उठा लिए और उसको नाम दिया प्रीवी काउंसिल का। और ये प्रीवी काउंसिल जो है बाद में कैबिनेट बना, या इट गिव बर्थ टू द एग्जिस्टेंस ऑफ कैबिनेट। तो कैबिनेट भी प्रीवी काउंसिल से ही वजूद में आया। अच्छा, ये तो दो चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई। अब आते हैं एक और चीज की तरफ। 1215 में हम उसको कहते हैं मैग्ना कार्टा या द ग्रेट चार्टर। मैग्ना कार्टा ये एमसीक्यूज के लिए बड़ा लाजमी है, पॉलिटिकल साइंस में भी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी, और इवन अभी आप लोग पीएमएस और सीएसएस की जो स्क्रीनिंग टेस्ट होती है, पीएमएस की होती है, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर भी आ सकता है कि मैग्ना कार्टा कब हुआ था। तो उसके लिए ये डेट लाजमी याद रखें, 1215 में। ठीक है। इस वक्त जो था एक किंग था, और उसके साथ जो है इन लोगों ने, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे और जो लोग थे, एक मुआहिदा हुआ, उसको ग्रेट चार्टर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि इसको क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा का दूसरा नाम। सो द ग्रेट चार्टर या ग्रेट चार्टर जो है, फिर मैग्ना कार्टा को भी एज एन एमसीक्यूज ऑप्शन लिया जा सकता है। एनी हाउ, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू योर पार्ट ए ऑफ योर पेपर। अब आते हैं मैग्ना कार्टा में होता क्या है। मैग्ना कार्टा एक पहला ऐसा दुनिया का रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन है जो फर्स्ट टाइम दुनिया को मिला। इससे पहले कुछ भी रिटन नहीं था इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट या रूल्स रेगुलेशन या प्रिंसिपल्स या लॉज, कुछ भी नहीं था, ये पहला है। अब मैग्ना कार्टा में क्या होता है, चंद खसूसियात बताता हूं। एक ये है दैट इट इज अ चेक ऑन द अनलिमिटेड पावर्स ऑफ द किंग, कि किंग जो है अनलिमिटेड पावर्स इस्तेमाल नहीं कर सकता, जैसे टैक्स लागू करना, किसी को सजा देना, यही वो ये सब करेगा विद द असेंट ऑफ द प्रीवी काउंसिल। जो प्रीवी काउंसिल है उसके असेंट पर, या जो काउंसिल बनाए जाते हैं उसके मुताबिक करेगा। दूसरा ये है कि नो फ्री मैन कैन बी अरेस्टेड विदाउट द प्रोसेस ऑफ ड्यू लॉ, के जो ड्यू लॉ प्रोसेस है या कानूनी तरीकेकार है, उसके बगैर किसी शख्स को ना तो उसको सजा दी जाएगी, इम्प्रेजन भी नहीं किया जा सकता, उसको अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता, उसको सजा भी नहीं दी जा सकती। उसको एक खास तरीके से गुजरना होगा, कानूनी तरीका जो भी होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका जो भी होगा, उसी के मुताबिक एक शख्स को जो है गिरफ्तार किया जा सकता है। अदरवाइज नो फ्री मैन कैन बी अरेस्टेड। ठीक है, आर्बिट्रेरली, कि बस कोई कानून ना हो और आप इसको पकड़ लें। तो अब ये क्या है, मैग्ना कार्टा से क्या हुआ, मैग्ना कार्टा से ये हुआ कि दुनिया को पहला रिटन जो है आईन भी मिला। दूसरी बात यह कि लिबर्टी का कंसेप्ट वजूद में आया, कि इंसान, इंडिविजुअल को भी लिबर्टी मिली, कि हाँ आई एम अ फ्री मैन, नोबडी कैन हार्म मी, कि मुझे कोई भी हार्म नहीं कर सकता। ठीक है। अब ये तो दूसरा डेवलपमेंट हुआ। फिर तीसरा डेवलपमेंट क्या होता है ये भी बता देता हूं। फिर राइज ऑफ पार्लियामेंट है, कि पार्लियामेंट का वजूद में आना। पार्लियामेंट किस तरह वजूद में आया, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि द ओरिजिन ऑफ पार्लियामेंट में बी ट्रेस्ड इन द मैग्नम कंसोलियम ऑफ द ग्रेट काउंसिल ऑफ द नॉर्मन टाइम्स। ठीक है, उस वक्त 1265 और फिर 1295, मतलब 1265 एंड 1295। ठीक है, इन लोगों ने एक बॉडी जो है इस्टेब्लिश की और उसको नाम दिया पार्लियामेंट का, और फिर कहा कि अब जो है इसके मीटिंग्स होंगे और ये फैसले करेंगे। उसके लिए जो है सबसे पहले इसमें कौन लोग शिरकत करते थे, 2 नाइट्स, 2 क्लर्जीज एंड 2 बेरॉन्स, मतलब 2 किस्म के लोग आ गए। नाइट्स अरिस्टोक्रेट्स वगैरह, या नाइट जो है जो फौजी हजरात, जिसको आज जनरल्स वगैरह कहते हैं, उस वक्त नाइट्स होते थे जो मजहब के लिए लड़ते थे, किंग और क्वीन के लिए लड़ते थे, और वो हाईएस्ट
रैंक होता इन दियर आर्मी कह ले, और उसको सब लोग बड़ी इज्जत देते थे। तो हर टाउन से वो भी आते थे, शिरकत करते थे कानून बनाने के लिए या कोई फैसला करने के लिए। 2 क्लर्जीज भी होते, जैसे मुल्ला वगैरह हो गए, बिशप्स, आर्क बिशप्स या फादर्स कहते हैं, ये हो गए। और साथ में जो है आम लोगों से भी लिया जाता। तो 3 तरह की जो है लोग उसमें आ गए, एरिस्टोक्रेट्स भी आ गए, कॉमनर्स भी आ गए, और रिलीजियस क्लास भी उसमें शामिल हो गया। फिर जो है वक़्त के साथ साथ ग्रोथ ऑफ द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट का जो पावर है वो फिर बढ़ता रहा, और साथ में जो किंग और क्वीन के इख्तियारात थे वो भी पार्लियामेंट को दिए जाते थे। उसकी वजूहात है, वजूहात बताता हूँ। वजूहात यह है कि काउंसिल्स बने, ये लोग मशवरे करते थे, किंग को सपोर्ट करते थे। वक़्त के साथ साथ किंग्स जो है वीक किंग्स आने लगे, वीक किंग्स, कमज़ोर किंग, वो खुद फैसले नहीं कर सकते थे, सब कुछ जो है इन्हीं लोगों को दे दिया कि आप लोग बस फैसले करें, मैं ऐसे ही बैठा रहूँगा। तो जाहिर बात है ताकत तो फिर पार्लियामेंट को ही मिलना था, या जो काउंसिल्स बनाए थे इन लोगों ने उसको ही मिलना था। अच्छा, इसमें एक ट्रांजिशन पीरियड भी है, फिर आखिर में आकर कैबिनेट पर बात ख़त्म करता हूँ। ट्रांजिशन पीरियड में क्या होता है? ट्रांजिशन पीरियड में ट्यूडर और स्टुअर्ट्स जो है वो किंग होते थे, और वो एब्सोल्यूट मोनार्की जो है इस्टेब्लिश किया। पार्लियामेंट को इन लोगों ने मुकम्मल तौर पर क्या किया, ख़त्म किया, या जो है इसको बिल्कुल सप्रेस किया और मोनार्की इस्टेब्लिश की। तो इस तरह से एक लड़ाई जंग शुरू हुई 2 बॉडीज़ के दरमियान, स्टुअर्ट किंग्स, जेम्स द फर्स्ट और जेम्स द सेकंड। इसी तरह जो है जो पार्लियामेंटेरियंस थे, ख़ासतौर पर क्रॉमवेल्स के लोग, वो जो है पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी चाहते थे, और सिविल वार शुरू हुआ इंग्लैंड में, और उसमें जो है जेम्स द फर्स्ट को बिल्कुल बिहेड किया गया। फिर जो है एक भाग गया और वहाँ पर पार्लियामेंट्री निज़ाम जो है या फर्स्ट डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की इंग्लैंड में। लेकिन साथ में याद रखें, द इंग्लैंड people are highly traditionalist and they are highly conservative. They do not want to live without the monarchy. monarchy के बगैर ये रहना ही नहीं चाहते थे, और इसीलिए the parliamentary or the first democracy failed, और वो फेल हुआ। क्रोमवेल का जो पार्लियामेंट था उसको भी फिर ख़त्म किया गया। दोबारा से इन लोगों ने क्या किया, जेम्स द सेकंड उसको बुलाया और उसको कहा कि आ जाए भाई, आप हम पर जो है अपनी किंगशिप जारी करें और बादशाहत करें। वी वांट मोनार्की, नॉट डेमोक्रेसी ऑफ क्रोमवेल। एनी हाउ, वो शख्स, ये जो जेम्स द सेकंड था, ही वाज नॉट एज एक्टिव एंड पावरफुल एज हिज फादर। वो अपने फादर की तरह इतना पावरफुल नहीं था, और उसने भी जो है सारे के सारे इख्तियारात और फैसले उन्हीं काउंसिल्स को दे दिए कि आप लोग करें ये काम, ठीक है। और इसी तरह जो है वक़्त के साथ साथ ये भी जब ख़त्म हुआ, फिर जो है एक और किंग आया, ठीक है, और उसने चाहा कि वो भी पार्लियामेंट को ख़त्म करे और ज़्यादा से ज़्यादा पावर हासिल करे। एनी हाउ, उसके ख़िलाफ़ भी जो है ये लोग खड़े हुए, और फिर जिसको हम ग्लोरियस रिवोल्यूशन कहते हैं, सिविल वार के तहत ग्लोरियस रिवोल्यूशन आया और उसको भी ख़त्म करके एंड दे इस्टेब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी इन लोगों ने कायम कर दी, और आज तक है पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है ऑफ द इंग्लैंड। अच्छा, अब आते हैं कैबिनेट की तरफ। कैबिनेट जो है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि सबसे पहले एंग्लो सैक्सन थे, उन लोगों ने किंगशिप किया, फिर नॉर्मन कंक्वेस्ट हुआ, विलियम द कंक्वरर आया, उसने जो है क्यूरिया रिजिस बनाया, फिर जो है उससे निकल कर एक छोटा सा जो है अपने लिए एक और काउंसिल बनाया, उसको नाम दिया प्रीवी काउंसिल का, और फिर प्रीवी काउंसिल में भी जो है छोटे से चंद लोग लिए गए, जिसके साथ जो किंग होता अपने वक़्त का एक ख़ास कमरे में या एक ख़ास कैबिनेट में मीटिंग्स करता और तमाम मशवरे करता। इस कैबिनेट में मीटिंग करने की वजह से इसको कैबिनेट का नाम भी मिला, इसको कैबल भी कहा जाता है, ठीक है, लेकिन अभी कैबल नहीं कहा जाता, बस अभी कैबिनेट ही कहा जाता है।
और ये एक इम्पोर्टेंट हिस्सा भी बना। किस तरह इम्पोर्टेंट हिस्सा बना? शुरू में इसके पास इख्तियारात नहीं थे, ये बस जो किंग कहता ये लोग सिर्फ मशवरा देते थे और किंग उसके मुताबिक काम करता था, क्योंकि एक शख्स अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। ही नीड्स अ टीम, वो टीम तो हर शख्स को चाहिए होती है। एनीहाउ वक्त के साथ साथ क्या हुआ कि जो किंग होते थे वो कमज़ोर होने लगे और कुछ ऐसे आए जिसको हम कहते हैं हनोवेरियन जो है किंग आए, आई थिंक नाम, हाँ, हनोवेरियन किंग। और उसमें एक क्वालिटी ये थी कि उसको न इंग्लिश आती थी और न पॉलिटिक्स से खबरदार थे, कुछ भी नहीं पता था, तो बस वो घर में बैठता, अपने ही घर में मजे करता कि बस मैं किंग हूं। बाकी सारा काम जो है कैबिनेट वालों पर छोड़ दिया था कि आप लोग मुल्क संभाले, जो करना है करते रहे। अब कैबिनेट वालों ने क्या किया, एक शख्स को अपना सीनियर बना दिया, नाम दिया प्राइम मिनिस्टर का, और इससे हमारे पास बर्तानिया का पहला प्राइम मिनिस्टर भी आता है और उसका नाम है वॉलपोल। ये एमसीक्यूज के लिए ये भी याद रखें कि हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, सो दैट इज वॉलपोल। कैबिनेट से आया था, ठीक है। अब ये तो हुआ, कैबिनेट ने क्या किया, अब ये ही सब कुछ कर, टैक्स भी लगाता और सब कुछ करता, और इसी तरह कैबिनेट जो है एक पावरफुल, और इस वक्त अगर आप लोग देखें तो कैबिनेट ही पूरी दुनिया में पावरफुल इदारा बन चुका है। इवन पाकिस्तान में भी देखिए प्राइम मिनिस्टर होता है और उसके जो मिनिस्टीरियल स्टाफ होता है उसको कैबिनेट कहा जाता है, और यही पावर है पूरे मुल्क और यही लोग संभालते हैं। इसी तरह बर्तानिया में ले ले तो प्राइम मिनिस्टर और उसका जो कैबिनेट होता है वही सब फैसले करता है, और वही एग्जीक्यूटिव भी होता है, और वही एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है, और वही पूरे मुल्क के लिए पॉलिसीज भी बनाता है, कानून भी बनाता है और सभी कुछ करता है। और जो किंग और क्वीन है अब वो सिर्फ और सिर्फ टिटुलर हेड, नॉमिनल हेड बन चुके हैं, सिर्फ बराए नाम बैठते हैं, बाकी उनके पास कुछ भी नहीं होता। अब आते हैं सेलियन फीचर्स की तरफ। इसके कॉन्स्टिट्यूशन की सेलियन फीचर्स क्या है वो बता देता हूं। एक ये है कि बर्तानिया का जो आईन है दैट इज अनडॉक्यूमेंटेड एंड अनरिटन, पार्टली अनरिटन एंड पार्टली रिटन। रिटन भी थोड़ा बहुत है, जैसे कि मैग्ना कार्टा ले ले, पिटिशन ऑफ राइट्स ले ले, द पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट ले ले, आपकी किताब में चंद चीजें हैं कि वो रिटन में आज तक मौजूद हैं, लेकिन मोस्टली जो है ये अनरिटन है। अनरिटन से मुराद क्या है, अनडॉक्यूमेंटेड से मुराद क्या है कि इसका एक डॉक्यूमेंट नहीं है, like the constitution of USA, like the constitution of Pakistan, like the constitution of India, it does not have any single document which prescribes each and every rules or central principles to rule or to govern the state. इसके पास कोई भी एक जो है किताब या डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें ये सब कुछ रूल्स रेगुलेशंस अपने या लॉज या जो एक्ट्स हैं ये लिखे हुए हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बर्तानिया में। तो दुनिया में चंद ऐसे ममालिक हैं, ये भी एमसीक्यूज में आता है, जहां पर आपसे पूछा जाता है कि दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में नहीं है, तो फिर वो यूके है, इसी तरह सऊदी अरेबिया भी है, कनाडा, स्विट्जरलैंड और ये इजराइल भी उसको समझा जाता है, अगरचे उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया लेकिन चला नहीं और अब भी वो ऐसे ही चल रहे हैं। अच्छा, तो फिर ये लोग फैसले किस तरह करते हैं, फैसले करते हैं या अपना मुल्क चलाते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन कन्वेंशंस। जैसे मैंने कहा, दे आर हाईली ट्रेडिशनलिस्ट, दे आर हाईली कंजर्वेटिव एंड दे लव कन्वेंशंस। ये कन्वेंशन को ही जो है कानून भी मानते हैं और लॉ भी मानते हैं। तो जो कन्वेंशन जैसे मोनार्की बाय कन्वेंशन है तो आज तक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, दैट इट इज अ स्पेसिमेन ऑफ डेवलपमेंट एंड कंटिन्यूटी। के ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस इज द चाइल्ड ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन, रिवोल्यूशन नहीं, ये बात भी याद, रिवोल्यूशन नहीं है बल्कि इवोल्यूशन। पहले क्या था, पहले किंगशिप आया, फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टेब्लिश हुई, फिर नॉर्मन कंक्वेस्ट हुआ, फिर प्रीवी काउंसिल, फिर पार्लियामेंट और कैबिनेट, और ये सब आहिस्ता 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 आहिस्ता, इवन इसमें सिविल वार्स भी आया, ग्लोरियस रिवोल्यूशन भी आया, ये सब आहिस्ता आहिस्ता हुआ और इन लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनता रहा, कन्वेंशंस भी बनते रहे और उसूल भी बनते रहे और कानून भी बनता रहा। ये कोई ऐसा काम इन लोगों ने नहीं किया कि बस आज़ादी हासिल की और फिर बैठ गए और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जैसे पाकिस्तान ने किया, जैसे इंडिया ने किया। तो वो
आज़ादी के बाद इन लोगों ने फौरन ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इन लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने हजारों साल लिए, तो इस वजह से इसको कहा जाता है दैट इट इज द चाइल्ड ऑफ इवोल्यूशन। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरा पॉइंट, कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल किस तरह है कि इट हैज एडाप्टेबिलिटी एंड एडजस्टेबिलिटी। इसमें एडाप्टेबिलिटी का कंसेप्ट भी है, एडजस्टेबिलिटी का नई चीज मिले तो उसको एडाप्ट भी कर लेते हैं और उसके साथ खुद को एडजस्ट भी कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि इनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और इसका जो ऑर्डिनरी लॉ है दोनों सेम है, दोनों में कोई फर्क है ही नहीं। बाकी ममालिक में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अलग होता है और ऑर्डिनरी लॉ अलग होता है। और एक फ्लेक्सिबिलिटी ये भी है कि अगर इनके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जरूरत हो तो वो सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है। यूनिटरी सिस्टम है, मतलब पार्लियामेंट ही सब कुछ है, एक सेंटर है, कोई सूबे वगैरह या जो यूनिट्स होते हैं उसका कंसेप्ट इनके मुल्क में नहीं है। तमाम का तमाम पावर जो है सेंटर के पास या एक ही पार्लियामेंट है और उसके पास होता है। सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो चौथा पॉइंट जो है सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट इज एक्सट्रीमली सॉवरन, इसकी सॉवरेनिटी में बिल्कुल शक ही नहीं है। इंग्लैंड का पार्लियामेंट दैट इज सॉवरन। नीलम व्हाट इज द पॉइंट, अमेंडमेंट की बात भी करूंगा, खैर है अभी आप लोग सिर्फ ये पॉइंट्स लिखते जाएं कि ये अनरिटन है, दूसरा इट इज द चाइल्ड ऑफ इवोल्यूशन है, तीसरा फ्लेक्सिबल है, चौथा यूनिटरी है, पांचवा पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है, इसमें मतलब पार्लियामेंट ही सुप्रीम इदारा है, पार्लियामेंट से ही सब कुछ होता है, ठीक है, वही एग्जीक्यूटिव है, वही कानून बनाता है, वही इसको इन्फोर्स भी करता है, ठीक है, कैबिनेट के जरिए। अब आते हैं सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं, खूबसूरत बात है, आप लोग नोट भी करें कि इनका पार्लियामेंट इतना सॉवरन है कि इसके बारे में लिखा जाता है द ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट टू मेक अ मैन अ वुमन एंड अ वुमन अ मैन, कि ब्रिटिश पार्लियामेंट सब कुछ कर सकता है सिवाय इसके कि वो एक मर्द को औरत और औरत को मर्द बनाए। सिर्फ ये है कि वो आपका जो सेक्स है या जेंडर है वो चेंज नहीं कर सकता, बाकी ये सब कुछ कर सकता है। देयर इज नो चेक ऑन इट, देयर इज नो जुडिशियल रिव्यू इन देयर सिस्टम। इनके कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू भी नहीं है, कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि आपने ये कानून क्यों बनाया। इवन किंग और क्वीन जो है वो भी पार्लियामेंट के सामने नहीं आ सकते, अगरचे उसके पास इख्तियारात हैं इन थ्योरी। अच्छा, अब हमारे पास एक और पॉइंट आता है थ्योरी एंड प्रैक्टिस का। तो थ्योरी एंड प्रैक्टिस की बात करें, आप लोगों को आसानी से समझा देता हूं। अच्छा, आसानी से समझा देता हूं और वो ये है कि थ्योरी अलग चीज होती है, प्रैक्टिस अलग। अब जुबानी बातें तो अलग चीज है, लेकिन आप प्रैक्टिस में क्या हो वो अलग चीज है। अब आता हूं जो असल पावर और सॉवरन है वो कैबिनेट है, वो पार्लियामेंट है, और जो थ्योरी में है, जो जो आप कह ले के कन्वेंशंस कह ले या थ्योरी कह ले, जिसको दुनिया भी मानती है, वो असल पावर जो है क्वीन के पास है। मोनार्की तो है, इवन कहा जाता है कि आज भी जो भी होता है इन द नेम ऑफ किंग और क्वीन होता है, जो भी कानून बनाया जाता है इन द नेम ऑफ क्वीन। अगर क्वीन दाखिल हो जाए एक कमरे में, जस्ट सपोज, तो प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, तो प्राइम मिनिस्टर को लाजिमन जो है उठना है उसकी इज्जत के लिए, ताकि क्वीन की जो है रिस्पेक्ट हो। क्वीन के पास ये भी इख्तियार है कि वो प्राइम मिनिस्टर को भी हटा दे, पूरे मुल्क का निज़ाम ही चेंज करे। बट इन थ्योरी, ये सिर्फ थ्योरी है, इन प्रैक्टिस ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिस में असल पावर भी प्राइम मिनिस्टर के पास है, असल इख्तियारात भी पार्लियामेंट के पास है, कैबिनेट के पास है। किंग और क्वीन के पास कुछ भी नहीं है। दे आर नोन एज टिटुलर हेड्स, दे आर नोन एज नॉमिनल हेड्स। उनको सिर्फ बराए नाम हेड कहा जाता है, बाकी इसके पास कुछ भी नहीं है। जैसे पाकिस्तानी सदर ले ले,
आरिफ अलवी साहब और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क आएगा। 18वीं तरमीम के बाद सदर से तमाम के तमाम इख्तियारात ले लिए गए हैं। नाउ ही इज़ ओनली द टिटुलर हेड एंड रियल पावर्स आर विद द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। इसी तरह बरतानिया में भी है। अच्छा, 9th पॉइंट ये है कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि इसमें मोनार्की भी है, जैसे किंग और क्वीन, जैसे हुमा ने क्वेश्चन भी किया कि वहां पर मोनार्की है तो डेमोक्रेसी कैसे हुई, तो ये मिक्स है। मोनार्की भी है जैसे किंग और क्वीन आज तक है। फिर जो है इसमें अरिस्टोक्रेसी भी है, जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स ले ले। हाउस ऑफ लॉर्ड्स पर एक लेक्चर दूंगा। अपर हाउस जिस तरह पाकिस्तान में सेनेट है तो वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। वहां पर जो लोग बैठते हैं वो हेरिडिटरी होते हैं, विरासत में उनको ये सीटें वगैरह मिल जाती हैं, तो अरिस्टोक्रेसी भी है। और तीसरा ये है कि हाउस ऑफ कॉमन्स भी है इसमें, जैसे लोग इलेक्ट होकर आते हैं पार्लियामेंट से, लोग वोट देते हैं, फिर पार्लियामेंट में जाते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, फिर वहां से कैबिनेट भी बनता है, प्राइम मिनिस्टर वगैरह सब कुछ बनता है। जैसे पाकिस्तान में नेशनल असेंबली है या लोअर हाउस है तो वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो तीनों जो है मौजूद हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन। चौथा जो है रोल ऑफ कन्वेंशन, जैसे मैंने कहा कि ये अनरिटन है तो ये ज्यादा रिलाई करते हैं कन्वेंशंस पर, और कन्वेंशंस की बात करूं तो इसको ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। कैसे, मैं अभी आपको एक मिसाल देता हूं। बाय कन्वेंशन ये है इनके कि जो भी प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट जो भी कानून बनाए और वो कानून जाए क्वीन के पास उसकी असेंट के लिए, उसकी अप्रूवल के लिए, तो जो भी हो बस उसने बिना कुछ कहे साइन करना है। अगर ये कानून अपने ही खिलाफ क्यों ना हो, क्वीन के खिलाफ क्यों ना हो, जैसे कि क्वीन को आज फांसी दी जाएगी तो वो इस पर भी साइन करेगी। क्यों? बिकॉज इट इज अ कन्वेंशन। कन्वेंशनल, हाईली कन्वेंशनल लोग हैं, ये बात जहन में रखे, दे आर हाईली कन्वेंशनल। अगरचे ऐसा होता नहीं है, ये मैंने सिर्फ मिसाल दे दिया। लोग एग्जैजरेट करते हैं पॉइंट्स को, राइटर्स यही मिसाल देते हैं कि अगर उसे अपने ही मौत, डेथ वारंट पर भी जो है साइन करना पड़े तो बस वो करेंगे, वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। एंड दिस इज बाय कन्वेंशन। अच्छा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करें तो अमेरिका की तरह वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर्स थ्योरी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जुडिशरी को इंडिपेंडेंस हासिल है। दे रिस्पेक्ट जस्टिस एंड दे रिस्पेक्ट ऑल द जजमेंट्स रेंडर्ड बाय द जुडिशरी, के जो भी अदलिया फैसला करती हैं सब उसको मानते हैं। अगरचे वहां पर अमेरिका की तरह इंडिपेंडेंस नहीं है और रिटर्न फॉर्म में भी नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट होगी, इसी तरह जुडिशियल रिव्यू भी नहीं है वहां पर, लेकिन रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ भी एक पॉइंट है, आपको पढ़ाऊंगा भी कि रूल ऑफ लॉ वहां पर है। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि सब लोग बराबर हैं बिफोर द लॉ, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, वो एक अदना सा मिनिस्टर है या एक आम इंसान है, उसको एक ही अदालत में जो है देखा जाएगा और उसका फैसला किया जाएगा। जैसे पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट है तो इसी तरह उधर भी है। वहां पर फिर थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट अलग होता है। एनी हाउ, जब अदलिया निज़ाम पढ़ाऊंगा आप लोगों को समझ आ जाएगी। पैराडॉक्सेस और एनामलीज भी हैं। पैराडॉक्सेस और एनामलीज का मतलब ये है कि वहां पर ये खुद को डेमोक्रेसी भी कहते हैं लेकिन साथ में मोनार्की भी है, तो ये क्या है? पैराडॉक्स ही है। पैराडॉक्स मतलब तजाद ही है। डिविएशन, एनामलीज मीन डिविएशन, अपनी ही बातों से ये लोग डिविएट कर रहे हैं, लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी वहाँ का निज़ाम बेस्ट निज़ाम है। लिबर्टी भी है, इंडिपेंडेंस भी है, तरक्की भी कर रहा है, ठीक है। और एक वक्त में क्या ये एक हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री भी रह चुकी है, कोई इसका मुकाबला ही नहीं कर सकता था। फिर अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन ये लोग उठे तो इन लोगों की अहमियत थोड़ी सी कम होने लगी। अदरवाइज इट was once a सुपर पावर। अच्छा, अभी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, नहीं तो आज का लेक्चर थोड़ा सा आप लोगों के लिए बता देता हूं कि आज मैंने क्या क्या पढ़ाया। आज हमने पढ़ा ओरिजिन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, या
इसका जो पार्लियामेंट है वो कहाँ से आया, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया, हिस्ट्री भी पढ़ा दी, साथ में इसकी अहमियत भी बता दी कि ये पेपर के हवाले से कितना अहम है और हो सकता है। ठीक है, बाकी दुनिया में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है अगर आप लोगों ने समझने हैं तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को समझना लाजमी है। तो शुरू में जो है आप लोगों ने एक क्लास भी मिस नहीं करनी, क्लास जो है आप लोग लाइव लिया करें, क्योंकि इस वक्त आप लोग मुझसे सुन सकते हैं एंड आई हैव सम एनर्जी एंड दैट एनर्जी ट्रांसफर्स टू यू व्हाइल यू आर लिसनिंग टू मी। अगरचे आप इसको रिकॉर्डेड भी सुन सकते हैं, लेकिन इस वक्त आप मैं इवन आप लोगों के मैसेजेस भी पढ़ सकता हूँ। आप लोग क्वेश्चन करते रहे, मैं आप लोगों को जवाब भी देता रहूँगा। ठीक है, अभी सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ। फिर हमने जो है ये भी पढ़ा कि कैबिनेट किस तरह आया, किंग और क्वीन से इख्तियारात किस तरह कम होते रहे। ठीक है, मैग्ना कार्टा क्या है, साथ में पार्लियामेंट का ग्रोथ किस तरह हुआ, ट्रांजिशन पीरियड कौन सा है। ठीक है, कौन कौन से रिवोल्यूशन, सिविल वार और ग्लोरियस रिवोल्यूशन पर भी बात की। फिर आगे चलकर हमने सेलियन फीचर्स पढ़े। सेलियन फीचर्स में अनडॉक्यूमेंटेड कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबिलिटी का रोल ऑफ कन्वेंशंस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, पार्लियामेंट, ठीक है, सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इज द एग्जीक्यूटिव वगैरह, ये पॉइंट्स पढ़े। डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, यही सारी चीज़ें, और यही अगर आप लोग पेपर में भी लिखते हैं तो डेफिनेटली यू विल हैव हाई स्कोर एज कंपेयर टू दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड the salient features of the British Constitution. अच्छा, शाह साहब मेंबर, should I replace public administration with constitutional law? अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो अपनी ईज के लिए करें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है, अगर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑलरेडी सब्जेक्ट है, आपने इसकी तैयारी की है, पेपर 1 की भी की है, और आप मज़ीद भी जो है इसको रिटेन करना चाहते हैं, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये पॉलिटिकल साइंस भी है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी है, तो आपके दोनों पेपर कवर हो जाएंगे। बाकी डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इसके साथ लेते भी नहीं हैं, लेकिन चूंकि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो मैं तो यही स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ले ले, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होता है उसके लिए, तो कर ले। 300 नंबर है, जैसे 200 पॉलिटिकल साइंस के, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के। 300 नंबर के लिए अगर आपसे एक महीना ज़्यादा लिया जाता है, आपसे थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लिया जाता है, एक रजिस्टर आपका बढ़ जाता है, तो वो तो करना होगा लाजिमन। दूसरी बात यह है कि अगर आप कोई और सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव, ये क्या तुमने लिखा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपने लिखा है, तो इसके लिए फिर आपने अलग से कंसेप्ट तैयार करने होंगे, अलग से राइटर्स पढ़ने होंगे, अलग से। और ये तो बिल्कुल जो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है वही सारी चीज़ें इधर भी पढ़ रहे हैं, तो आपका जो माइंड है वो डिविएट नहीं होगा, डिस्पर्स नहीं होगा, स्कैटर्ड आइडियाज भी नहीं होंगे, फोकस होगा। ये टिप है, बाकी इट डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट। I don't have any authority to suggest you do this and do that. It is all about you. What is the advantage of these two subjects of government? Why not you cannot opt only one system? नहीं, ये वन सिस्टम और टू सिस्टम कौन से हैं, ये आपने कैसा क्वेश्चन किया है। सिस्टम तो एक ही है, सिस्टम एक ही है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इन लोगों ने रिटेन किया हुआ है मोनार्की को। अब ये दूसरा सिस्टम नहीं है, मोनार्की बराइनाम है, वहां पर मोनार्की है ही नहीं, ये बराइनाम। बराइनाम का मतलब क्या है, अब पाकिस्तान में सदर है या ना है उसका कोई वजूद तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हो तो बस हो। तो इसी तरह मोनार्की इन लोगों ने बाय कन्वेंशन, जैसे मैंने कहा ये बड़े रिवायत परस्त लोग हैं, ये कभी भी ये रिवायत ख़त्म नहीं करना चाहेंगे कि ये अपनी क्वीन को ख़त्म कर दें, ये निज़ाम को ख़त्म कर दें। क्वीन एक फोर्स है जो इस पूरे निज़ाम को जो है इकट्ठा करके रखती है। अदरवाइज वहाँ पर पार्लियामेंट्री निज़ाम है, मोनार्की टिटुलर है, नॉमिनल है। आगे चलकर इस पर बात भी करेंगे। अच्छा, मीना गुलाई, इट कवर्स मोस्ट ऑफ द एरियाज इन जेन्युइन, बिल्कुल ये तो है। अच्छा, डेमोक्रेसी प्लस अरिस्टोक्रेसी। अच्छा, अरिस्टोक्रेसी की बात तो वो भी बाय कन्वेंशन आज तक चला आ रहा है, और इसको पैराडॉक्सिस और एनॉमलीज भी कहते हैं। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो है, लेकिन वो भी वीक है, उसका भी इतना पावर नहीं है। बस पावर सिर्फ हाउस ऑफ कॉमन के पास है, और पावर सिर्फ फिर हाउस ऑफ कॉमन्स में भी कैबिनेट के पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। बाकी सारी चीज़ें हो भी तो हो,
पावर ना हो तो बस रहे, बस आप एक किताब इस मेज पर रखे तो रख लें, कोई जो है आसमान तो नहीं गिर जाएगा। हाँ, मसला तब होता जब क्वीन और पार्लियामेंट एक दूसरे को के साथ लड़ते झगड़ते। मीना गुला, यस ऑफ कोर्स, ये वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक फर्दर। हमने अब इस पूरे जो सिस्टम को पढ़ लिया, सेलियंट फीचर्स को, हमने हर एक चीज पर अलग अलग लेक्चर देना है, जैसे सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, जैसे पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जैसे पावर्स ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हमने पॉलिटिकल सिस्टम को भी पढ़ना है, पॉलिटिकल पार्टीज को भी पढ़ना है, जुडिशरी को भी पढ़ना है, उसका लोकल गवर्नमेंट निज़ाम भी पढ़ना है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन मे बी इट विल टेक 1 वीक एटलीस्ट, ये हमसे शायद 1 हफ्ता ले ले, लेकिन हमने इसको डिटेल से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि यही बुनियाद है। बस ये आप लोगों का बन गया, बाकी सब जो है यही, यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर की खसूसियात हैं वही खसूसियात फिर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के साथ भी है। 1 या 2 चीज़ें चेंज हो सकती हैं। जो खसूसियात यहाँ पर किंग और क्वीन के हैं तो इसी तरह इंडिया के जो सदर है उसके भी हैं, बस 2 या 3 चीज़ें चेंज होती हैं। I still do not have command ये क्या कमांड, अच्छा कमांड ओवर पेपर 1 ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जी, तो ये तो होता है ना। अब आपने मेरे साथ क्या पढ़ा है? आपने तो मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ 1 महीना पढ़ा है। 1 महीने में भी हमने तकरीबन 12 या 15 क्लासेस ली हैं, ठीक है। उसमें से टेस्ट भी हो गए, उसमें से जो है आपका मंथली टेस्ट भी हो गया, तो पूरा कमांड तो मेरे ख्याल में नहीं आ सकता। जो कंसेप्ट क्लैरिटी थी वो मैंने दे दी, जो सिलेबस को समझाना था वो भी आप लोगों को समझा दिया, जो टॉपिक्स पढ़ाने थे वो भी आप लोगों को पढ़ा दिए। आप लोगों के पास ये महीना भी है कि हम साथ में ये भी कवर कर सके, और पेपर 1 में अगर आप लोगों को कोई मसला या दिक्कत वगैरह पेश आती है वो भी कर सके। बाकी आप टाइम बढ़ा दें। अब आप लोगों ने खुद को थोड़ा सा रगड़ा देना है, क्योंकि 12 सब्जेक्ट्स है। आप खुद सोच ले, 12 सब्जेक्ट्स एंड 12 मंथ्स, आर दीज इनफ फॉर एवरेज स्टूडेंट्स लाइक यू गाइस? ठीक है, जो एवरेज स्टूडेंट है पाकिस्तानी निज़ाम का, आप लोगों को पता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है। 2-2 चैप्टर पढ़कर फिर उसको मास्टर्स की डिग्री दी जाती है। कोई रिसर्च, कोई प्रोजेक्ट नहीं होता, कोई 16 आवर स्टडी काम जो है स्टूडेंट से नहीं लिया जाता। बस जो क्लास में पढ़ लिया वही पेपर में लिख लिया। लेकिन CSS ऐसा नहीं है। CSS में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर आपने खुद को रगड़ा देना है, अपनी ज़ात को। टीचर आपको सिर्फ गाइड करेगा, टीचर आपको सिर्फ जो है नोट्स प्रोवाइड करेगा, आपको बताएगा कि आपने कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कैसे मार्क्स लेने हैं, क्वेश्चन किस तरह हल करना है, ग्रामर किस तरह ठीक करना है, वोकैबुलरी किस तरह ठीक करनी है, हेडिंग्स किस तरह यूज़ करने हैं या नहीं करने, पैराग्राफ्स किस तरह लिखने हैं, किस राइटर्स पर कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आप लोगों को बता दिए जाते हैं। सही, तो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन 1 महीने में आप कहते हैं कि पूरा कमांड हासिल हो, तो ये तो मेरे लिए पॉसिबल कम से कम नहीं है। जब मैं आप लोगों की परफॉर्मेंस वगैरह देखता हूँ, हाँ ये है कि आप लोग काम करें। मैंने आप लोगों को जितना पढ़ाना था पढ़ा लिया। नाउ इट इज़ अप टू यू कि मुझसे भी काम ले लेना। मैं तो आप लोगों को पढ़ाता हूँ, क्वेश्चंस करें, कमांड हासिल, जहाँ पर कमांड नहीं है वहाँ पर जाएं, कमांड हासिल करें, प्रैक्टिस करें, लेके रीड करें। जो किताबें मैंने आप लोगों को सजेस्ट की हैं आप खुद देख लें कि आपने उसमें कितना, जिसको हम कहते हैं सेल्फ एनालिसिस, इंट्रोस्पेक्शन, तो आप अपनी इंट्रोस्पेक्शन कर लें, सेल्फ एनालिसिस कर लें कि मेरे वीक पॉइंट्स क्या है। मैंने जनाब 12 लेक्चर हैं, कितने लिए हैं? 12 के 12 लिए हैं। नोट्स कितने बनाए हैं? मैंने बनाए तो 5 के हैं, बाकियों के नहीं बनाए, वो तो मैंने सिर्फ सुन लिया है। अच्छा, तो उसको सुन ले, उसके नोट्स भी बना ले। उसके बाद कितना क्लास के बाद आप लोगों ने टाइम दिया है पॉलिटिकल साइंस के बुक्स को दैट आई सजेस्टेड, और जिसमें से मैंने आप लोगों को बुक्स पाए, उसको जो है टाइम कितना दिया है? कुछ भी नहीं दिया है। नहीं दिया है तो अभी शुरू करें और 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे इस एक टॉपिक को दे लेना। जैसे
अरिस्टोटल को दे रहे, प्लेटो को दे रहे, अगर चैप्टर स्टेट्स पर है उसको दे रहे। ये सब के लिए, ये सिर्फ आपके लिए नहीं नीलम अकबर, ये बातें मैं सबको कर रहा हूँ, सही। सो इट्स इनफ, हैव अ नाइस टाइम, enjoy yourselves. If you still have any kind of questions, then you can ask me in the relevant post. Thank you.